Hello everyone, welcome to this session. In this particular session, we will discuss about important polity MCQs that are asked in previous year questions. These are marathon session and we will cover this session in just 2-3 parts. We will cover MCQs from 2011 to 2022 and these are categories. These are 8 important areas where the questions will come from. This first is constitutional framework, system of government, judiciary, panchayati raj, governance, elections, constitutional and non-constitutional bodies, and the miscellaneous. We'll go to the first question. We will cover these areas one by one. These are very important session. You can say it's a revision session. ये बहुत सारे MCQs आपने पहले भी देखे होंगे. तो let's go one by one and discuss the. और यहाँ पर जब भी हम कोई MCQ डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें मैं आपको कुछ ट्रिक्स या फिर अगर कोई स्टेटमेंट गलत है तो अगर आपको नॉलेज भी नहीं है तो भी आप उस क्वेश्चन को कैसे डिडक्ट कर सकते हैं, सही आंसर तक कैसे पहुंचा जा सकता है, मैं इसमें आपको वो बताऊंगा. तो हम फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के बारे में देखते हैं. See this MCQ. Sorry for this portrait mode. I usually upload the videos in landscape mode, but today I feel that this portrait mode is much better for discussing such kind of MCQs. So you can see the screen properly. अगर landscape होता तो बस इतना ही आता उसमें, तो उसमें ऑप्शन भी आपको ठीक से दिखना चाहिए. See this. In India, if a religious sect community is given the status of national minority, what special advantages it is entitled to? तो देखिए, first it can establish and administer exclusive educational institutions. It can establish and administer. ये तो हमारे constitution में भी है. तो first is correct. Just a second. Then second, no, just see the third statement. It can derive benefits from the Prime Minister's 15-point program. ये Prime Minister's 15-point program था. उन्होंने Ministry of Minority Affairs, उन्होंने उसको वो किया था, लॉन्च किया था. और उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें थी कि गरीब नवाज, नई मंजिल, न्याय सवेरा, नया सवेरा एक्चुअली, PM कौशल विकास योजना, NRLM, उस्ताद, ऐसे करके बहुत सारी स्कीम थी. तो उसमें से अगर कुछ भी बेनिफिट हो रहा है किसी रिलीजियस या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी को तो ये सही होता है. इट्स नॉर्मल स्टेटमेंट. एंड सेकंड स्टेटमेंट देखिए, ये गलत है क्योंकि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली, दिस वर्ड यू नीड टू कैप्चर, नॉमिनेट्स अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कम्युनिटी टू लोकसभा. ये ऑटोमेटिकली नहीं होता है. ये कोई फैन नहीं है जो बटन दबाए और ऑटोमेटिकली शुरू हो गया. It's a big thing. President of India automatically nominates. No, it's not true. हमेशा UPSC ऐसे वर्ड्स देखे आपको कंफ्यूज करता है और आपको इस ट्रैप को पकड़ना था. और एक क्वेश्चन था, इंडिया विल ऑटोमेटिकली बिकम मेंबर ऑफ नेशनल सप्लायर्स, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, ऐसे करके. तो ऐसा ऑटोमेटिकली कभी कुछ भी नहीं होता. तो इसका सही आंसर है 1 and 3, ऑप्शन सी. This, see this 1 and 3. $15-point प्रोग्राम इसमें आप पढ़ सकते हैं. फिर देखिए, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी. कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? तो इसमें फर्स्ट इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी. बाकी ये तीनों फंडामेंटल ड्यूटीज हैं. टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स. These all three are fundamental duties. But to vote in public elections, it's not a fundamental duty. Look at this. To vote in public elections is a constitutional right. ये हमारे नोट्स में भी है, जो मैंने आपको नोट्स भेजे थे टेलीग्राम पर. अगर आपको नोट्स चाहिए तो मुझे वो मैसेज कर सकते हैं, उस नोट्स में है पॉलिटी के.
Look at the third question. Which of the following is among the fundamental duties of citizens laid down in the Constitution? To preserve the rich heritage of our composite culture. Yes, true. To protect the weaker sections from social justice. I don't think so. It's not a fundamental duty. ये सरकार का काम होता है, हमारा नहीं. To develop the scientific temper and spirit of inquiry. Yes. To strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity. Yes, it's true. तो इसका आंसर 1, 3, 4 है. 2 यहाँ पर गलत है, क्योंकि ये सोशल जस्टिस वगैरह वीकर सेक्शन को प्रोवाइड करना ये गवर्नमेंट का काम होता है, और फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स यहाँ पर बात कर रहे हैं. 1, 3, 4. लेट्स लुक एट द क्वेश्चन 4. 2013 में आया था. एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी initiated by an introduction of a bill in the Lok Sabha only. Do you think so? I don't think so. Because statement 1 is wrong, because it can be initiated in any house. So it's wrong. Second, if such an amendment seeks to make changes in the federal character of the constitution, the amendment also requires to be ratified by legislature of all the states of India. All ये word आपको पकड़ना चाहिए. यहाँ पर असली में है नॉट लेस देन हाफ स्टेट्स, इतना होना चाहिए, तो ये भी गलत है. इसका सही आंसर नीदर 1 and 2, नीदर 1 nor 2. फिर देखिए, इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन. इकोनॉमिक जस्टिस की बात कर रहे हैं, 2023 में आया था ये क्वेश्चन. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हमेशा ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी बहुत जम्बलिंग कर देते हैं. तो इसका सही आंसर है द प्रियम्बल एंड DPSP. फंडामेंटल राइट्स में नहीं है. इकोनॉमिक जस्टिस फंडामेंटल राइट्स नहीं होता, ये सिर्फ प्रियम्बल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है. ऑप्शन बी. क्वेश्चन 6. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ कंट्री. 4 ऑप्शन: फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज. इसमें सही आंसर है DPSP. DPSP इज वेरी इंपॉर्टेंट थीम ऑफ UPSC. यू कैन नेवर इग्नोर दैट. जो भी मैंने पॉलिटी के नोट्स भेजे हैं, आपको ये मत सोचना कि उस नोट से सब हो जाएगा. लक्ष्मीकांत का पूरी दुनिया में कोई अल्टरनेटिव नहीं है. आपको उसको 3-4 बार हमेशा रीड करना ही है. 7th question. In the Constitution of India, promotion of international peace and security is included in. अभी 2014 के क्वेश्चन है, इसका भी आंसर DPSP है. अभी आप उसको मेजर कीजिए कि DPSP और फंडामेंटल राइट्स पर कितने ज़्यादा क्वेश्चन है, और दोनों में भी DPSP पर बहुत ज़्यादा फोकस होता है. इसका सही आंसर DPSP है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. अभी हमें एक और ध्यान रखना है कि DPSP जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, एक एज अ गाइड करता है, सिटीजन्स को नहीं. सिटीजन्स का कनेक्शन आता है सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटीज़ की तरफ, लेकिन स्टेट या फिर गवर्नमेंट जो है उसका कनेक्शन है DPSP के साथ. DPSP एज अ गाइडिंग लाइट काम करता है और उसको गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने में के लिए उनका मदद करता है. तो यहाँ पर देखिए, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये कोई आम आदमी तो नहीं कर सकता, एक सिंगल सिटीजन ऐसा काम नहीं कर सकता. ये सिर्फ सरकार कर सकती है, और सरकार किसकी मदद से करेगी? DPSP. क्वेश्चन नंबर 8 2014 का. Consider the following statements. A constitutional government is one in which first places effective restrictions on individual liberty in the interest of state authority, places effective restrictions on the authority of the state in the interest of individual liberty. देखिए, ये दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्ररी है और दोनों में से सिर्फ एक ही सही होगा, और इसमें पहला गलत है. यहाँ पर हमें करेक्ट पूछा है, ये भी आपको हमेशा ध्यान रखना है, करेक्ट या फिर इनकरेक्ट.
तो फर्स्ट है प्लेसेस इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी। यहाँ पर बोल रहा है कि इंडिविजुअल को रेस्ट्रिक्शन लगा दो और स्टेट को खुलेआम छोड़ दो, ऐसा नहीं होता। तो इसमें इम्पॉर्टेंट है कि स्टेट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शंस इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। हमेशा इंडिविजुअल लिबर्टी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है बिकॉज इट्स ए डेमोक्रेसी। इसका सही आंसर 2 ओनली। नाइन्थ क्वेश्चन 2015 का। Consider the following statements regarding DPSPs. The principles spell out of the socio-economic democracy in the country. Okay, true, very true. Spell out, it's not that extreme thing. Second, the provisions contained in these principles are not enforceable by any court. Obviously, it's a guiding light. It's not a law or an included in, it's not a act. It's not a binding thing. और इसमें आर नॉट एनफोर्सेबल, डीपीएसपी का यही तो वो होता है, एक फीचर है अलग। करेक्ट पूछा है हमें, इसका सही बोथ 1 और 2। ये गाइडिंग लाइट है, सरकार को बस आपको लेना चाहिए, ऐसा सरकार को बोलते हैं, सरकार उसके हिसाब से अपने लॉज वगैरह बनाती है। 10th क्वेश्चन, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज अ प्रोविजन मेड इन द, ये 2015 का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए यहाँ पर भी फंडामेंटल ड्यूटीज, अगर ऐसा कोई भी बात है जो कि एक इंसान या फिर एक सिटीजन या फिर एक इंडिविजुअल को ध्यान में रखकर अगर कुछ चीज़ है तो हमेशा फंडामेंटल ड्यूटीज में आएगा, और अगर सरकार को कुछ करने के लिए बोल रहा है तो वो डीपीएस में आएगा। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज अ प्रोविजन मेड इन फंडामेंटल ड्यूटीज। फिर 11th क्वेश्चन, ये आर्टिकल 51A इसमें है। फिर 11th क्वेश्चन, द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एनश्राइंड इन, ये 2020 में भी वापस रिपीट हुआ है क्वेश्चन, आपको वो ध्यान से देखना है, हमेशा पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं। तो इसका सही आंसर है डीपीएसपी। देखिए अगेन डीपीएसपी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थीम। वेलफेयर स्टेट डीपीएसपी 2020 में भी रिपीट हुआ था। फिर 12th क्वेश्चन, द राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज अ, आप ये देखिए पहले भी रिपीट हुआ था, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट, पहले भी रिपीट हुआ है, सो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 13, which of the following are envisaged by the right against exploitation in the Constitution of India? It's a 2017 वाला क्वेश्चन, और इसमें से सिर्फ 1 और 4 सही है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, बस इतना है, इसमें 1 और 4 है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, फर्स्ट, एंड फोर्थ प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस। ये अनटचेबिलिटी इसमें नहीं है, ये है फंडामेंटल राइट, लेकिन ये आर्टिकल 17 में है, इट्स नॉट इन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में। फिर प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ये भी इसमें नहीं है, ये अलग आर्टिकल में है। तो बस राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये हमारे नोट्स में है डायरेक्ट से, तो इसका बस 1 और 4 ही है, 2017 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फिर देखिए ओके, क्वेश्चन 14 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एन इंडियन सिटीजन। फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन, a legislative process has been provided to enforce these duties. फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐसा कुछ बाइंडिंग नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटीज उन्होंने बोला है कि आप ये फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए, इट्स नॉट एनफोर्सेबल एंड दे आर कोरिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज। नो, दे आर नॉट कोरिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज, इट्स नॉट लीगल एंड नॉट कोरिलेटिव, एंड इट्स लेजिस्लेटिव प्रोसेस ऐसा कोई भी प्रोवाइड नहीं किया गया है। और हमसे करेक्ट पूछा है, दोनों में से कोई भी करेक्ट नहीं है, इसका आंसर नीदर 1 नॉर 2। फिर क्वेश्चन नंबर 15,
Which of the following objectives is not embodied in the preamble to the Constitution of India? अगर preamble आपने ठीक से देखा है, अगर ठीक से पढ़ा है, समझा है, तो आपको ये डेफिनेटली आएगा. लिबर्टी ऑफ थॉट है उसमें, ए ब्रॉडर टर्म है. लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन भी है एंड लिबर्टी ऑफ बिलीफ भी है, लेकिन इकोनॉमिक लिबर्टी इज नॉट देयर. हमें नॉट पूछा है. हमें हमेशा क्या होता है ना कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा लोग पढ़ते, लिबर्टी ऑफ थॉट देखते, करेक्ट मार्क कर देते. यहाँ पर नॉट पूछा था. लुक एट दिस प्रीएम्बल. ये कीवर्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं. वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग, ये कीवर्ड देखिए, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, ये 3 एस से शुरू होने वाले. फिर डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, फिर जस्टिस. जस्टिस में कौन सा? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. फिर लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, अभी देखा हमने ऊपर. फेथ एंड वर्शिप. फिर इक्वेलिटी, फिर अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट, ये सब. फ्रेटर्निटी, इसमें यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, एंड इसमें डेट भी है कि 26 डे ऑफ नवंबर 1949. ऐसा, ये सारे कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं, इम्पॉर्टेंट है. बहुत महान लोगों ने इसको बनाया है, तो इम्पॉर्टेंट है. क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है. 2021 में भी आया था कि हमारा क्या स्टेटस था पहले ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन का इस तारीख से पहले, तो ये सब था. क्वेश्चन नंबर 16. Democracy's superior virtue lies in the fact that it calls into activity. Second, third और fourth देखिए, methods of strengthening executive leadership. No. Democracy's superior virtue, ये आपको पकड़ना था. मेन थिंग डेमोक्रेसी का सुपेरियर वर्च्यू, उसका बेस्ट फीचर क्या है? क्या ऐसा है कि एग्जीक्यूटिव लीडरशिप को स्ट्रेंथन करने की मेथड्स बताई है? नो. सुपेरियर इंडिविजुअल विद डायनेमिज्म एंड विजन? नो. एक किसी इंडिविजुअल के बारे में नहीं है. अ बैंड ऑफ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर्स इज सच अ लेमैन थिंग, इट्स नॉट दैट. फर्स्ट देखिए कितना सही है. द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन. Democracy's superior virtue lies in the fact that it calls into activity the intelligence and character of ordinary men and women. कितना important है ये. Question number 17. In the context of India, which one of the following is correct relationship between rights and duties? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राइट्स आर कोरिलेटिव विद ड्यूटीज. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, देखिए, राइट नॉट ड्यूटीज, फिर ड्यूटीज नॉट राइट्स, ऐसे करके सब जमलिंग कर दिए, तीनों गलत है. इसका सही स्मॉलेस्ट फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट. 18th question. The mind of the makers of the Constitution of India is reflected in which one of the following? तो इसका सही आंसर है, अभी माइंड किस चीज में रिफ्लेक्ट होता है? एक जस्ट प्रीएम्बल में रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि उसमें अच्छी अच्छी बातें एकदम क्या क्या हम करना चाहते हैं, बस एक 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 वो रिव्यू होता है कि इस एक पेज में हमारा पूरा आप देख सकते हैं ऐसा करके. तो इसका सही आंसर प्रीएम्बल. One of the implications of society, equality in society, is the absence of privileges. Obviously, अगर एक इंसान को है उसको privileges है और एक इंसान privileges नहीं है, तो ये तो इक्वालिटी नहीं हुई. तो एक तो सबको प्रिविलेज दो या फिर सबको ना दो. सबको प्रिविलेज देना, इट्स नॉट दैट बिग, इट्स सबको प्रिविलेज देना, इट्स अ बिग थिंग, जनरली नॉट feasible actually. So one of the implications of equality in society is the sense of privileges. कोई भी किसी को भी privilege नहीं. हम देखते हैं कि खुद राष्ट्रपति बोलते हैं कि मैं भी एक सिटीजन हूँ, मैं भी एक आम नागरिक हूँ. प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, तो ये क्या बोलते हैं कि हमारे पास प्रिविलेज नहीं है, हम भी आपकी ही तरह ऐसे. तो इक्वालिटी की बात वो होती है.
विच वन ऑफ द 19th क्वेश्चन देखिए ये, which principle among the following was added to the DPSPs by the 42nd amendment to the constitution? ये हमारे नोट्स में है, PYQ में 10-12 बार रिपीट हुआ है 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इम्पॉर्टेंट है, इसके साथ अभी 2023 में भी वो रिपीट हुआ था, उसमें 3-4 ऑप्शन थे, इसमें 42nd वाला भी था। तो इसमें से कौन सा ऐड किया था 42nd के थ्रू? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। इक्वल पे फॉर इक्वल ये सब इसमें नहीं था, वो थोड़ा अलग उस चीज में था। आई थिंक जस्ट अ सेकेंड, अभी इसमें सिर्फ ऑप्शन बी करेक्ट है जो 42nd में था, और ये बाकी के अलग अमेंडमेंट से थे। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? 2017 का क्वेश्चन है, राइट्स आर क्लेम्स ऑफ स्टेट अगेंस्ट सिटीजन्स। नो, इट्स नॉट क्लेम्स ऑफ, नो, राइट्स आर क्लेम्स, इट्स नॉट क्लेम्स, इट हैज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आल्सो। फिर राइट्स आर प्रिविलेजेस, नो नॉट राइट्स, ऐसा प्रिविलेज भी नहीं है, अब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस अभी हमने देखा। फिर राइट्स आर क्लेम्स ऑफ सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट, एंड फिर राइट्स आर प्रिविलेजेस ऑफ फ्यू सिटीजन्स अगेंस्ट मैनी। फ्यू सिटीजन्स, इक्वालिटी कहाँ हुई? इसका सही आंसर है सी, राइट्स आर क्लेम्स ऑफ सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट एंड नॉट राइट्स आर द क्लेम्स ऑफ स्टेट। देखिए ये ए और सी एकदम अपोजिट थे, इसका मतलब आंसर इसी में से था। ये राइट्स क्लेम होता है सिटीजन्स का, नॉट स्टेट का, ये ध्यान में रखना। हमेशा प्रायोरिटी इंडिविजुअल को देना है या फिर सिटीजन्स को। 21st देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू DPSPs। DPSP कंस्टिट्यूट लिमिटेशंस ऑन, ओके, दोनों के ऊपर ही वो करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, नो नो नो, दोनों के ऊपर नहीं, क्योंकि वो क्या होता है कि करेक्ट पूछा है, और लिमिटेशंस DPSP नहीं, फंडामेंटल राइट्स करते हैं। DPSP इट्स नॉट नॉट बाइंडिंग थिंग, तो दोनों के ऊपर नहीं है उसका लिमिटेशंस। फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 23rd देखिए, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, ऑब्वियसली पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ लॉ and the validity of law placed in the 9th schedule cannot be examined by any court and no judgment can be made on it. It's extreme. ये पहले हुआ करता था, इसीलिए 9th शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया गया था। अभी भी 2023 में आई थिंक 51st क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक 54th या 31st या फिर 41st ऐसा कुछ तो था। तो इसमें फर्स्ट अमेंडमेंट की बात की गई थी कि ऐसा कौन सा अमेंडमेंट था जिसकी वजह से किसी एक्ट को किसी शेड्यूल को या फिर किसी एक्ट को जुडिशियल ओवरव्यू या फिर रिव्यू से बचाया जा सकता है। तो उसका फर्स्ट अमेंडमेंट था, 9th शेड्यूल के थ्रू आया था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पे थे, जमींदारी एक्ट को रिलेटेड उसको लाया गया था। तो सेकंड इज रॉन्ग, ये फर्स्ट करेक्ट है, पार्लियामेंट कैन प्लेस, ओके, फर्स्ट इज ट्रू। ट्वेंटी-4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज द मेन फीचर ऑफ रूल ऑफ लॉ। इसमें करेक्ट पूछा है लिमिटेशंस ऑफ पावर, ओके, मेन फीचर ऑफ रूल ऑफ लॉ, ऑब्वियसली पावर्स के ऊपर लिमिटेशंस होने चाहिए। अभी भी 2023 में क्वेश्चन आया था कि चीफ पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? टू लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट। लिमिट, हमेशा लिमिट रहती है, ऐसा आर्बिट्रेरी या फिर डिक्टेटरशिप नहीं है इंडिया में, डेमोक्रेसी है, इसलिए लिमिट्स हैं, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। फिर सेकंड देखिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ, वेरी नाइस, गुड स्टेटमेंट, ऑब्वियसली करेक्ट। मेन फीचर ऑफ रूल ऑफ लॉ वही तो होता है। पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, नो, इट्स अपोजिट, इट्स गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पीपल। पीपल्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। फोर्थ देखिए, लिबर्टी एंड सिविल राइट्स, ऑब्वियसली ये तो होता ही है, ये हर देश में होता है, वो कितने अप्लाई करते हैं वो पता नहीं, लेकिन वो होता है। इसका सही आंसर 1 to 4।
25th क्वेश्चन देखिए, राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज ए इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये सब किस आर्टिकल में है, ये सब इस बताया है। ये राइट टू प्राइवेसी इज आर्टिकल 21 एंड गारंटेड इन पार्ट 3। केस पुत्तस्वामी केस आपको भी पता होगा, तो वो आप देख सकते हैं, ये इसी के रिलेटेड है। फिर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी, ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं आपकी बस अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए, क्या आपको सही अंडरस्टैंडिंग है या फिर सिर्फ लक्ष्मीकांत रट के आ रहे हैं, ये चेक करने के लिए। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है तो ऐसे क्वेश्चन सही होते हैं। और हमेशा याद रखिए, ऐसे जो लॉजिकल भी नहीं, जो अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है ना, इसका आंसर ए या फिर बी में कभी नहीं होगा, सी या फिर डी में। क्योंकि हमेशा लोगों की टेंडेंसी रहती है कि उनको फर्स्ट सही लगता है उसको मार्क कर देते, लेकिन आंसर सी या डी पे छुपा होता है। इसका सही आंसर है टू अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुल्ली, इट्स अ वेरी नाइस रैशनल थिंग। तो इसका आंसर डी है। फर्स्ट देखिए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट टायरेनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स, नो, ये डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी नहीं है। एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, ये भी नहीं। अपॉर्चुनिटी, देखिए अपॉर्चुनिटी सी और डी सिमिलर स्टेटमेंट है। अपॉर्चुनिटी टू, यहाँ तक सही है, इसका आंसर इसमें दोनों में था। एंड सी में देखिए, अपॉर्चुनिटी टू डू वॉट एवर वन लाइक्स, नो, इट्स नॉट लिबर्टी, इट्स अ स्टूपिड थिंग। ये कुत्ते को नहीं हम वो कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी या फिर लिबर्टी दे रहे हैं, ये एक इंसान को है, उसको डेवलप होना चाहिए फुल्ली। थोड़ा रैशनल, एक मैच्योर आईएएस या फिर आईपीएस आप बनने जा रहे हैं, तो ऐसा मैच्योर थिंकिंग होना चाहिए। 27 देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस। इट्स एक प्रिवेसी का मैटर होता है या फिर पर्सनल चॉइस का मैटर है। तो आर्टिकल 21 इसका सही आंसर। आर्टिकल 19, 25, 29 ये अलग चीज़ें हैं। फिर 9th शेड्यूल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टरशिप, अभी मैंने ऊपर बताया जवाहरलाल नेहरू। हमेशा 9th ये शेड्यूल वाला बहुत पूछते हैं, तो इसके उसमें उनको वो किया गया था, जमींदारी एक्ट वगैरह ये सब उन्हीं के टाइम पर चला था। बहुत इंपॉर्टेंट है, फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। फिर विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट। अभी मैंने बताया कि पहले एक वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है वेलफेयर स्टेट का। इसका सही आंसर डीपीएसपी। बहुत ज़्यादा फोकस है यूपीएससी का, मैं तो कहूँगा फंडामेंटल राइट्स से भी ज़्यादा डीपीएसपी पर उनका फोकस होता है। क्वेश्चन 30, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 2020 का क्वेश्चन है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, नो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन गाइड या फिर कैन इनेबल बट कैन नॉट डिफाइन। कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट डिफाइन, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी चीज़ें डिफाइन नहीं करता। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऑर्डर है, बहुत लेजिटिमेट, बहुत बड़े लोगों ने बनाई हुई चीज़ है, तो वो डिफाइन नहीं करता। ऐसे कोई डिफाइन मतलब थोड़ा नैरो स्पेसिफिक हो गया, हम बोल नहीं सकते कि ये कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन बोलेगा ड्रॉन्ग कर दो। यहाँ पर देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर, प्रोवाइड्स हो सकता है, प्रोवाइड्स का थोड़ा सॉफ्ट मीनिंग होता है, फॉर जुडिशियल रिव्यू, ओके, टू सेफगार्ड द सिटीजन्स लिबर्टीज एंड टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑफ which the constitution is based. Yes, it's true. Second is correct ही पूछा था, फर्स्ट सही नहीं है क्योंकि डिफाइन बोला है। क्वेश्चन 31 की तरफ चलते हैं। द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, 2020 का ही क्वेश्चन है। तो इस पर बहुत सारी लक्ष्मीकांत ने एक आई थिंक लेफ्ट पेज पर कुछ केसेस दिखाई है, या फिर पेज के उस चैप्टर प्रीएम्बल के लास्ट में भी समरी में है। तो बेरुवारी यूनियन या फिर और कुछ और एक दो केसेस थे, तो उसमें ये सुप्रीम कोर्ट कहता था कि यस प्रीएम्बल इज द पार्ट, फिर अगर अगले जजमेंट बोलता था प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट, फिर अगले जजमेंट में बोलता था प्रीएम्बल इज द पार्ट बट इट हैज़ नो
इफेक्ट, इट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर, तो इसमें डी सबसे सही था। देखिए यहाँ पर लॉजिक पूछा है, सी या डी में मैंने बोला था ऐसे क्वेश्चन होते। 32nd, with reference to the provisions contained in Part 4 of the Constitution of India. Part 4 में क्या होता है? It's a DPSP. They shall be enforceable by courts and they shall not be enforceable by any court. ये अपोजिट है, इन दोनों में से एक ही सही होगा। इसमें दो सेकंड सही है कि they shall not be enforceable by any court. And the principle laid down in this part are to influence the making of laws by the state. Yes, it's true. 2 and 3 is the correct. DPSP स्टेट को गाइड करने के लिए तो होता है। फिर देखिए, which one of the following are the categories of fundamental rights incorporate protection against अनटचेबिलिटी के रिलेटेड कौन सा है, किसमें होता है? तो उसका आंसर राइट टू इक्वालिटी उसमें होता है। फिर इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एंजॉइंड बाय, फिर वही DPSP। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर आंसर ऑप्शन में DPSP है तो वो आंसर ही है, वही आंसर है ऐसा। इवन आई कैन से कि उसको फंडामेंटल राइट से भी ऊपर प्रायोरिटी दो। फिर इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एंजॉइंड बाय, ये अभी देखा हमने DPSP। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज अ लिमिटेड गवर्नमेंट, इस साल भी पूछा है, लिमिटेड गवर्नमेंट होता है, आर्बिट्ररी पावर नहीं होती। राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल 21 इज द राइट आंसर, 2-3 बार रिपीट हुआ है। फिर it's an important question. Okay, a legislation which confers on the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violates which one of the following articles? ये आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी को वायलेट करता है। ये बहुत ही आई थिंक मैं थोड़ा टफ कहूँगा, बहुत लॉजिक लगता है इसमें। 2021 का ये क्वेश्चन था, अगर आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग है तो आप उसको सही कर जाएंगे। आर्टिकल 32, 44 तो इसका काम ही नहीं था, आर्टिकल इसमें ही था 14 में। विथ रेफरेंस टू कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, 39, देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल, ऑब्वियसली। ओके, a citizen by birth only can become head of the state. Okay, let's see. Sorry, it's not true. अब फॉर ये ऐसा USA में होता है, हमारे यहाँ नहीं। विथ रेफरेंस टू इंडिया बोला है, ये भी ध्यान से पढ़ना है। अ फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। अगर किसी को फॉरेनर है उसको सिटीजनशिप दे दी और फिर उसने यहाँ पर क्राइम करना शुरू कर दिया या फिर कुछ भी करना शुरू कर दिया, तो क्या हम उससे उसकी सिटीजनशिप हमारी वापस नहीं ले सकते? ऑब्वियसली ले सकते हैं। तो ये एक्सट्रीम है, कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। कितना एक्सट्रीम है, इसका सही आंसर 1 ओनली। 40, which one of the following factors constitutes the best safeguard of liberty in liberal democracy? लिबरल डेमोक्रेसी की बात की गई है यहाँ पर, तो इसका आंसर है सेपरेशन ऑफ पावर्स। इट्स वेरी सेपरेशन ऑफ पावर्स होगी तभी तो लेजिटिमेट तरीके से या फिर विदाउट फियर एंड फेवर काम कर सकेंगे। कोई भी एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं, ना ही सुप्रीम कोर्ट, ना ही पार्लियामेंट, ना ही एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में आते हैं मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट में आते हैं लेजिस्लेचर, इसमें आते हैं जजेस। ये तीनों इंपॉर्टेंट बॉडी होती है, एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट नहीं। सुप्रीम कोर्ट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, वहाँ से उसका चार्जेस वगैरह लेते हैं, अपने एक्सपेंसेस मैनेज करते हैं, तो फिर गवर्नमेंट का उसमें कोई वो नहीं होता। कमिटेड जुडिशरी, नो, कमिटेड जुडिशरी किसके तरफ भी कमिटेड हो सकती है, या फिर लोगों की तरफ कमिटेड हो सकती है या फिर गवर्नमेंट की तरफ कमिटेड हो सकती है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, नो, नॉट अ गुड थिंग। इलेक्टेड गवर्नमेंट, ये तो नॉर्मल थिंग है, इसमें लिबरल डेमोक्रेसी का क्या? सेपरेशन ऑफ पावर इज द गुड थिंग। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स। वेल्थ किस में होता है? ये DPSP, हर बार बोला है कि DPSP दिखा उसको मार्क कर दो। इसी के साथ आई थिंक वी हैव एनालाइज्ड 41 क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आगे भी हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ऐसा आई थिंक 300 के आसपास कुछ हम क्वेश्चन या फिर 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेफिनेटली हम इसको डिस्कस करेंगे। बस 30 मिनट में आप में
आई थिंक एक दो क्वेश्चन तो आपके प्रीलिम्स 2024 में इसमें से आएंगे, या फिर आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि एक्चुअल में कैसा पूछा जाता है। फर्स्ट अटेम्प्टर सेकंड अटेम्प्टर वालों को पता नहीं होता, वही उनका प्रॉब्लम होता है। तो इसके तरह इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसा प्लान किया है, तो आप देख सकते हैं, आगे भी देखिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, मेक योर डे प्रोडक्टिव। थैंक यू सो मच।